celebration in the name of God. I would like to request Principal Sir, please come on stage. Please come on and lighting the lamp and start the function. Jyoti Deepo Jyoti Janardhana Deepo Hartum Me Papam Deepo Jyoti Namostute Shubham Karotu Kalyanam Arogyam Sukha Sampadam Dvesha Buddhi Vinashaya Atma Jyoti Namostute Atma Jyoti Pradiptaya Gurura Jyoti Namostute. Dr. Vinder Bhatia, Madam, our guest, Dr. Geeta, members of the staff, press reporters, and all the students. At the outset, I would like to say that the conditions of women were never good in the past. Women lived in a male-dominated society, and they were considered to be no better than slaves. They were confined to the four walls of their home. Slowly and steadily, women stepped out of the four walls and began to hold campaigns, rallies, etc. Now, women-centric issues set on the center stage on International Women's Day. It was initially celebrated by the Russian women in the year 1917 in St. Petersburg on the last Sunday in February, which fell on 8th March. Thus, the International Women's Day is celebrated all over the world on 8th March every year, as well as in private sector and civil society. So, women they influence the decision that will determine the future of their families and countries. To strengthen the women empowerment, enrollment of girls in schools made a huge difference in transforming the nation. Education of a girl leads to the economic development of the nation. So far as health is concerned, women must be educated about the proper, nutritious and less than outstanding. They have made progress in various spheres of life, whether in business, politics, sports, etc. Great women personalities such as Mother Teresa, Sarojini Naidu, Rani Lakshmibai, Indira Gandhi, Sonia Gandhi, government with their teams. Let us expect many more epitomes of such personality traits. Thank you. Thank you. Now we will proceed further with the views of Ms. Pooja on this topic. Please come on stage. मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज आपके सामने इस महिला दिवस के शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार साझे करना चाहती हूँ। और मेरा जो विषय है जिस पे मैंने फोकस किया है वो है नारी, और उस पे हो रहे जो ये उत्पीड़न है उस पे मैं अपने विचार आपके सामने व्यक्त करने जा रही हूँ। नर और नारी समाज के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि पुरुष समाज को नारी समाज पे श्रेष्ठता प्रदान की गई है। इसका कारण शायद ये भी रहा है कि प्राचीन काल में नारी जो है उसको घर की चार दीवारी में रखा गया है, और शायद उसी में रहकर वो अपने कर्तव्य को और कार्य का जो है वो पालन करती रही है। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने और शास्त्रकारों ने जो भव्य रूप उसे दिया है देवी का, वो बहुत ही आदरणीय है। उसे देवी कहकर पुकारा गया, उपासना और आराधना की संज्ञा दी गई। लेकिन इतिहास में एक दूसरा भी चरण आया जब नारी की उपेक्षा की गई और उसे भोग विलास की वस्तु बना दिया गया। विशेषकाल
मध्यकाल में तो नारी की दशा बहुत ही शोचनीय बन गई थी, लेकिन आधुनिक काल में नारी ने करवट ली और अपनी कायाकल्प कर डाली और अपने कर्तव्य क्षेत्र को उसने और भी विस्तृत कर लिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति और नव जागरण के बाद मां और पत्नी बनकर अपने घर को सजा रही है, संवार रही है, और दूसरे रूप में वह बाहरी क्षेत्र में जाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। उसने घर और बाहर दोनों ही स्थान पर बहुत ही अच्छा समन्वय जो है वो तैयार कर लिया है। मैं उस नारी की मतलब आधुनिक नारी की जो कंपैरिजन है वो एक पक्षी के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जिस पर इस समय वापस लौटकर वही दाना अपने बच्चों को अपनी चोंच से बहुत ही अच्छे और प्यार दुलार से उन्हें वो खिलाता है, वैसे ही आजकल की हमारी आधुनिक नारी है, सुबह अपने घर से अपनी नौकरी के लिए जाती है, उन्हें बहुत ही प्यार से खिलाती है। और अपने भी रह चुके हैं, खौर सिंह नाम है उनका, उनके विरुद्ध दो बहनों राधिका और गायत्री की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से उन्हें डायन बताकर उन्हें कथित रूप से परेशान किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया और उस मंत्री ने अपने भाड़े के गुंडों से उन्हें उनके घर से उठवा लिया, अपने घर ले गए, वहां उन्हें विष्ठा खाने और पेशाब पीने पर मजबूर किया गया। त्रिपुरा के अगरतला में विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे ढुलाई जिले के एक रिटर्निंग ऑफिसर के विरुद्ध एक रैली से लौट रही महिलाओं के वाहन चेकिंग करने के वालों को चाहिए कि वो अपने व्यवहार में शालीनता और अत्यधिक संवेदनशीलता लाए, ताकि लोग बिना डरे हुए, बिना संकोच से उनको ये सारी घटना का जो है वो वृतांत जो है वो सुना सके और पीड़ितों को अस्पताल ले जाएं, उनकी सहायता करें। यौन हिंसा के मामलों को लेकर लड़कियों के पहरावे पर भी बयानबाजी और सवालबाजी की गई थी। महिलाएं अगर लीक पार करेंगी तो आगे रावण ही मिलेंगे। इस देश में हर लड़की को वस्त्र चुनाव करने का अधिकार है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र देश है। यहाँ पर हर नागरिक को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है, तो वो अपना वस्त्र भी अपनी मर्जी से चुन सकती है। अधिकांश लड़कियां, ये इसका दूसरा कारण है, अधिकांश लड़कियां तथा महिलाएं जीवन भर आर्थिक तौर पर पुरुषों पर निर्भर करती हैं। शादी से पहले वे अपने पिता और भाई पर, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो वो अपने पति पर और बेटों पर निर्भर करती है। लेकिन वो महिलाएं जहां उनके घर वाले, अंकल, उनके पिता और उनके भाई उन पर ऐसी नजर रखते हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि जब एक औरत का रक्षक जो है वही भक्षक बन जाता है, तो कोई और दूसरा जो है वो उसकी तरफ मदद के हाथ नहीं बढ़ाता है। आप प्लीज उनका विरोध करें और नारी शक्ति को एक शक्ति के रूप में देखें। इसी के साथ धन्यवाद। एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है पावर विच इज गिवन टू द विमेन। It has two meaning, general meaning and specific meaning. General meaning means making them self-dependent. Self-dependent either by education or either by self-confidence. Specific meaning is related. Art is provided by our law, which have provided a very, very, very important role, very important need of our society. Political power, you know that कि अब 33% आरक्षण है, 4th पंचायत में भी हमें सीट्स मिल चुकी हैं, that is equality. Next is respect. Respect, it can be self-respect or respect in our society. In ancient period, divorce provide करता है, divorce उन गर्ल्स के लिए जो really need में है, ठीक है। आज की डेट में जो एक औरत है, अगर वो अपने इन-लॉज से परेशान है, तो हिंदू मैरिज फॉर डिवोर्स। सेकेंड इज हिंदू सक्सेशन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो इक्वालिटी प्रोवाइड करता है मेल और फीमेल में, गर्ल्स और बॉयज। नेक्स्ट इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये एक्ट जो है दिस इज द पावर फॉर गिवन टू द वुमेन, ग्रांटेड टू द वुमेन, कि वो एक अगर वो इफ शी इज इंडिपेंडेंट ऑल्सो ऑप्ट डिवोर्स एंड दे कैन ऑल्सो गेट मेंटेनेंस। Immoral Traffic Prevention Act. This is for safety of women. Dowry Prevention Act against
if this is equality of salary among male and female in each and every sector of India. Next is protection of women from domestic violence. Very clear, domestic violence से related ये एक्ट है. अगर किसी के साथ कोई भी घर में domestic violence है, बेशक उसकी सेल्फ है, उसका हस्बैंड है, उसकी इन-लॉज है, this is for that. Next is provision of child marriage act. Very clear कि आपको पता है 18 ईयर जो है वो कानून बहुत ज्यादा है, बट फिर भी काफी चीजें हैं, काफी ये जो प्रॉब्लम्स है इनको ओवरकम करने के लिए काफी जरूरत है, जो हम है अवेयर होके ही सिर्फ पूरा कर सकते हैं. These are some principles and suggestions for women empowerment. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ वीमेन टू इनेबल देम टू रियलाइज सेल्फ पोटेंशियल. ठीक है, जब तक आप खुद ही अपने ऊपर निर्भर नहीं होंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं. वुमेन के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, जो आपके लीगल प्रोविजन है उनकी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट से प्रिवेंट करना. दीज आर द मेन मोटो. वुमेन सेल ऑर्गेनाइज करना, वुमेन सेल बनाना. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है इस सब से हमें बचाने के लिए. इस बारे में भी थोड़ी जानकारी होना बहुत जरूरी है. जैसे जननी सुरक्षा योजना है, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन. 33% रिजर्वेशन. वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, ये जो जैसे मैम ने भी बताया हमें कि कुछ बहुत ज्यादा पीड़ित लेडीज है, ठीक है, जिनके पास उनका टेक केयर करने वाला भी प्रोवाइड करता है. Next is Rajiv Gandhi scheme of empowerment of adolescent. Empowerment of women is the pre-requirement to transform a developing country into developed one. That is थे कि विमेन डे हमने मनाना है तो हमारे पास कोई विमेन एक गेस्ट ऑफ द डे भी होना चाहिए. गॉड इज ऑन अवर साइड. यू आर लिविंग ऑन द गॉडेस लैंड. माँ कांगड़ा के आप धरती पर रह रहे हो. थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरे पास एक लेडी आपके सामने है, अभी आएंगी, मेरे पास आए तो कह रहे जी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हूँ मैं. आई एम ए प्रोफेसर देयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इन एन एफिलिएटेड कॉलेज. तो हम यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर कोई रिसर्च सर्वे कर रहे हैं. तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि हम भी आज विमेन डे मना रहे हैं, तो यदि आप हमारा भी इन्विटेशन एक्सेप्ट करें, हमारे बच्चों को 2 शब्द आप कहे. सो शी रेडली एग्रीड. आई एम टॉकिंग ऑफ डॉक्टर गीता लखनपाल, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, दिल्ली यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज. प्लीज गिव हर ए हैंड. विमेन एम्पावरमेंट डे आप लोग मना रहे हो. विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि औरतों को आपने शक्ति कैसे प्रदान करनी. ठीक है, बिकॉज आई एम हेडिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो पहले नंबर पे मैं ये कहूँगा कि थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के जरिए आप अपने आप को बच्चियों ताकतवर बना सकते हैं. ठीक है, शिक्षा से आपको को फायदा क्या होना है? एक तो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपको इजीली कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा. दूसरे नंबर पे आपकी इकोनॉमिकली जो इंडिपेंडेंस है वो बढ़ेगी. आपको पैसों के लिए, रोटी के लिए किसी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा. ये आज की जिंदगी की सच्चाई है. आप बात याद रखना, असली जिंदगी तो आपकी शुरू होनी है जब आपकी शादी हो जानी और आपको जिंदगी से जब लड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो एजुकेशन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है आपकी एम्पावरमेंट के लिए. मेरे पीछे जो 2 स्पीकर्स आए, मैडम आशिमा शर्मा ने अभी पावर प्रेजेंटेशन दी है, और उससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की मैडम पूजा ने बड़ी डिटेल में आपको बताया कि कैसे वायलेंस जो है वो विमेन सफ़र करती हैं. तो जितनी देर आपको जानकारी नहीं होगी, आप अपने राइट्स के लिए लड़ाई भी आप लोग नहीं कर सकते. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने